देश में ऐसे ही रक्तदाताओं की कमी है, खून की कमी है। अगर कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो लोगों को खून के लिए खून के आंसू रोना पड़ता है। ऐसे में थैलेसेमिक पेशेंट जिनको हर हफ्ते, हर महीने, हर पखवाड़े खून की ज़रूरत होती है, ख़ास करके बच्चों को, बुज़ुर्गों को, उनके लिए मुश्किलें आती हैं। ऐसे में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं आई हैं जिसमें यह कहा गया है कि आम लोग तो उनको तो जागरूक किया जाए रक्तदान के लिए, लेकिन ये आवश्यक है कि ट्रांसजेंडर्स को भी अलाउ किया जाए ताकि वो इस मानवीय कार्य में अपना सहयोग कर सकें। लेकिन बहुत लंबे समय से मामला सुप्रीम कोर्ट में घिसटता चला जा रहा है। सरकार का जवाब भी बहुत, सरकार ये तो कहती है कि सुरक्षा मानकों को लेकर उसे उसकी अपनी चिंताएं हैं, लेकिन उसका उपाय क्या हो, इसे लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। तो हमारे साथ इस मामले से जुड़े 3 लोग हैं, जिसमें कौशिक चौधरी हैं, इस मामले में अधिवक्ता, जो इस मामले में थैलेसेमिक लोगों की दलीलें कोर्ट के सामने रख रहे हैं। हमारे साथ राघवी हैं और राघवी इस मामले से जुड़ी हैं, और हमारे साथ निष्ठा हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कौशिक चौधरी जी से। कौशिक जी, इसमें सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, सरकार का जवाब क्या कहता है, कितनी उम्मीदें जगाता है आपकी? I think it would be better if I say in English. Yes. So what government stand has been very clear from the beginning that they are not allowing the transgender community and other related community to donate the blood because they say that it is not safe. We have filed an application on behalf of the thalassemia group. We are not exactly saying that whether the blood will be safer or not. Our primary concern is that even if the blood which has been donated by transgender, if we are saying unsafe, then there are more unsafe. There are other unsafe blood also which has been circulating in the entire society, which is affecting the public at large. There are news which we have given before the court that children are getting infected, thalassemia children, because of HIV, because of this blood transfusion. So what I have filed an application, I have not filed a petition. The petitioner is filed by the transgender community. They wanted to donate the blood. Now my application on behalf of the thalassemia people, we are saying that because as you stated that there's a scarcity of blood. Now whether there should be an encouragement to donate blood or not, but at the same time whether you are providing safer blood or not. Now who will determine it? For example, here in the entire country, there is no uniform testing, blood testing. The blood testing is done in a different matter. We are saying the matter which has been adopted, that matter has not given entire 100% result. So there should be some regulatory measure which exactly gives some satisfaction to the public that the blood test whatever test has been done is providing a safer and pure blood, because people will go anytime, every time they might need blood, and if that blood destroys their life in future, then what will happen? And this is thing happening. Recently I have gone through one news where I guess Jharkhand, 6 students got infected because of this blood transfusion, HIV. That is what for that reason only we have moved our application, that is before the court, and I'm sure that court will look after the matter and they will take a proper stand on it. राघवी, आप भी इस मामले से जुड़ी हैं। इस मामले की सुनवाई अव्वल तो आती नहीं है, आती है तो उसमें ज़्यादा आगे बढ़ती नहीं है। सरकार का अपना कहना है कि हम सेफ ब्लड को पर जोर दे रहे हैं, लेकिन वो सेफ ब्लड और कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई, ये 2 एस्पेक्ट हैं इसमें। तो सरकार के जवाब से कितनी उम्मीदें जगती हैं आपको? तो मैं पहले तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर बता दूं कि ये जो पिटिशन है, जो प्राइमरी पिटिशन रही है, वो शांता खुराई की, जो कि मणिपुर से एक ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और मैं इस मामले में से इसलिए जुड़ी हुई आप कह सकते हैं क्योंकि ये जो मामला है, ये मैं ब्लड डोनेट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ वो डिसाइड करता है। मैं सिर्फ एक लॉयर नहीं हूँ, मैं एक ट्रांसजेंडर पर्सन भी हूँ, और जो रेगुलेशंस हैं ब्लड डोनेशन एंड ट्रांसफ्यूजन को लेके, वो और ये जो पिटिशन भी है वो सिर्फ ट्रांसजेंडर महिलाओं को ब्लड लेने के लिए जो गाइडलाइंस है वो सिर्फ उनको नहीं रोकती हैं, वो MSM, men who have sex with men and female sex workers, उनके ऊपर भी बैन लगाती हैं ब्लड डोनेट करने से। जब आप सरकार का एफिडेविट पढ़ते हैं तो, और मैं कानूनी उस पर नहीं जाऊंगी कि क्या वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 21, उन सब में जाने के बजाय मैं बात करूंगी कि साइंस और स्टिग्मा
कैसे ये दो चीज़ जो हैं वो इस केस में इन्वॉल्व हैं और किस तरह से जो गाइडलाइंस हैं वो स्टिग्मा के बेसिस पे हैं और साइंस के बेसिस पे नहीं हैं। अगर आप गवर्नमेंट का एफिडेविट भी देखें तो गवर्नमेंट के एफिडेविट में वो बात करते हैं सेफ्टी के कंसर्न की। जब सेफ्टी का कंसर्न है तो सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि अभी तक फिर क्यों सेफ ब्लड नहीं लोगों तक पहुंच पा रहा है। जब आपने एक इस ग्रुप को, जिसको आप बोलते हो कि हाई रिस्क ग्रुप है, उसको आपने काट के अलग कर दिया है और उसके बाद भी आप उन लोगों को, जनता को जिनको खून चाहिए, उनको आप रक्त नहीं दिलवा पा रहे हैं विदाउट एनी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और डिजीजेस। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर इसको आप थोड़ा और स्ट्रेच करें तो अगर आप मेडिकल रिसर्च पढ़े तो आप देखेंगे कि बहुत सारी रिसर्च में सर्टेन स्टेट्स को हाई रिस्क ग्रुप माना जाता है कि वहाँ पे HIV या जो बाकी बीमारियाँ हैं उनका इंसिडेंस ज़्यादा है। तो क्या सरकार कल को कहेगी कि इन स्टेट से भी हम ब्लड लेना बंद कर देंगे या जो लोग इन स्टेट से हैं हम उनसे भी खून नहीं लेंगे? तो ये जो पूरा है बैन वो एक स्टिग्मा के बेसिस पे है, वो आउटडेटेड साइंटिफिक जो रिकॉर्ड है, जो साइंटिफिक इवैल्यूएशन है उसके बेसिस पे है। और आज के टाइम में जब साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो एक तरह से सरकार जो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और जो सरकार की एजेंसीज़ हैं जो रक्त को का एक तरह से सुचारू रूप से वितरण करती हैं और उसका स्टोरेज में इंश्योर करती हैं, वो कितना जिम्मेदारी लेंगी कि हम आपको सुरक्षित ब्लड पहुंचा पाएंगे। तो उस जिम्मेदारी से एक तरह से अपने आप को पीछे कर लेना है और ये कह देना है कि ये हाई रिस्क ग्रुप हैं तो हम इनसे ब्लड नहीं लेना चाहते हैं। और उसके अलावा आप जस्टिफिकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो कि जो अभी तक हो रहे हैं इंसिडेंट्स, जैसे सर ने पॉइंट आउट किया, वो कैसे हो रहे हैं। तो आपको स्टिग्मा पे नहीं जाना है, आपको साइंस पे जाना है, आपको जो वैज्ञानिक डेटा अवेलेबल है हमारे पास। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो आपने कमेटी का गठन किया था, जो एक कमेटी साथ में लाई गई थी, उसमें रिप्रेजेंटेटिव कौन है, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैटर करता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन भी डिसाइड करता है कि वो कमेटी में क्या क्या चीज़ें का डिस्कशन होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें रखी जाएंगी। तो उस कमेटी में भी आप देखेंगे कि जो NGOs हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड एक्चुअली मिल रहा है, उनके बारे में उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई वहाँ पे है भी नहीं। तो मुझे लगता है कि सरकार को ज़रूरत है कि वो एक तरह से फिर से इवैल्यूएट करें कि उनका स्टैंड किस जगह पे है और उसका स्टैंड जो है वो कहाँ से आ रहा है। यानी सरकार को व्यावहारिक रुख अपनाना चाहिए, ना कि बिल्ली को देखकर अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली गायब नहीं हो जाती है। थैलेसेमिक पेशेंट्स को कितने खून की ज़रूरत होती है और कितना सप्लाई हो रहा है, आप लोगों ने तो स्टडी किया होगा। थैलेसीमिया पेशेंट्स की एज और उनके वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको एक महीने में कितने ट्रांसफ्यूजन्स लगते हैं। नॉर्मली टू एन अडल्ट थैलेसेमिक ऑफ माय एज महीने में 2 दफ़ा 2 ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं और 2 यूनिट हर बारी चढ़ता है। तो आप महीने में 4 यूनिट की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल अडल्ट थैलेसेमिया पेशेंट्स को रहती है। तो इसमें क्या सप्लाई हो पा रही है, क्या कितनी मुश्किलें आती हैं? सी वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन से रिलेटेड कोई मैंडेट अभी तक इशू नहीं हुआ, उससे रिलेटेड कोई स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसीज़ भी अभी तक फ्रेम में नहीं आई है। मोर इम्पॉर्टेंटली प्रॉब्लम आ रही है प्रॉपर स्क्रीनिंग एंड इन्फेक्शन की टेस्टिंग की गाइडलाइंस के लिए, वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द कंट्री। दिल्ली जैसे शहर के अंदर, दिल्ली के प्रदेश में कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने नैट को अपनाया है, ये एक एग्जाम्पल है सभी बाकी स्टेट्स के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट तो गवर्नमेंट को ये रहेगी कि दिल्ली मॉडल को रेप्लिकेट किया जाए सभी स्टेट्स में और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स डिफाइन किए जाएं, चाहे वो साइंटिफिकली अलीसा को बेहतर माने या नैट को बेहतर माने। वो लिक्विड डिप्लेटेड ब्लड ज़रूर हर थैलेसीमिया पेशेंट्स को दें, या जितने भी और ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट डिजीज़ेज़ हैं और पेशेंट्स हैं उनको सेफ ब्लड मिले। जो एप्लीकेशन एट प्रेजेंट जो कोर्ट में चल रही है वो अपनी तरफ चल रही है, वो अंडर ज्यूरिसडिक्शन है, उसमें क्या फैसला होता है उसमें थैलेसीमिया पेशेंट्स नहीं इंटरवीन करेंगे। बट थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए और बाकी सारे ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट्स के लिए सेफ ब्लड मौजूद होना वो एसेंशियल है। उसके लिए इफ़ेक्टिव एंड यूनिफॉर्म गाइडलाइंस चाहिए। एंड
मैंडेट होना चाहिए, हर स्टेट के लिए वो मैंडेट होना चाहिए। जानकारी ये है कि हेल्थ जो है स्टेट मैटर है, बट ऐसे में जब हमारे को पैन इंडिया यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है तो मुझे ये ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और सभी पेशेंट्स के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन। पिछले कई समय से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो अभी तक की जो प्रगति है, अभी तक जो आगे बढ़े हैं सरकार और ये मुकदमा, उससे कितनी उम्मीदें लगती हैं कि कब तक हो जाएगा, क्या होगा? थैलेसीमिया पेशेंट्स के बिहाफ पे जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है, इंटरवेंशन एप्लीकेशन गई है इस मैटर में, तो हमारी बहुत उम्मीदें सरकार से बहुत ज़्यादा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब एक्शन ले और स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करे। यानी ये पूरा मामला अगर हम देखें तो कई सेगमेंट में, कई दिशाओं से इस पर असर पड़ता है। अव्वल तो ये कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 से लेकर 21 तक, जिसमें जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, सबको बराबर जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इसमें मानवाधिकार भी शामिल है, इसमें व्यावहारिक अधिकार भी शामिल हैं, व्यावहारिकता भी शामिल है, और कानूनी पेचीदगियाँ तो हैं ही। ऐसे में आवश्यक है कि थैलेसेमिक पेशेंट को सुरक्षित और सतत रक्त की आपूर्ति होनी चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी भी चलती रहे। ऐसे में आवश्यक है कि एक तो रेगुलर रक्तदान करने वालों की संख्या, जो अपने मन से रक्तदान करते हैं उनकी, और जो रक्तदान करना चाहते हैं लेकिन कानून उनको बाध्य करता है, तो उन सारे लोगों को रक्तदान का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इसमें सरकार को सजगता रहने की ज़रूरत है कि सुरक्षित और सतत रक्त का प्रवाह होते रहना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में होता है, वैसे ही हमारे समाज में जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको भी समय से मिलते रहना चाहिए। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।